everyone, this is Priyanka Jain. Welcome back to my channel The Life Baker. And if you are new to this channel, don't forget to click on the subscribe button. So guys, today I've made this video on how to study costing. Costing is a subject you get to learn in your CA intermediate level, CA finals level, in your BCom courses, in many other professional courses as well. In this video, you'll understand how to study this subject, what should be your approach, how you should practice, and how you should attempt in your exams. So let's get started. How to study costing. For cost, concepts are very important. Students, I always used to believe that if you understand any concept properly, you will be able to answer any kind of question from that concept. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली अपने एक नोटबुक में लिखिएगा एंड उसके बाद उसके सॉल्यूशंस करिएगा. राइट दोज कॉन्सेप्ट्स एंड देन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट सो दैट व्हेनेवर इन एग्जाम्स you'll get questions which have mixed concepts. तो एक individual concept को you will be able to solve properly. Okay, so if you have a good knowledge of the concept, you will be able to answer your papers properly. Clear understanding, as I said, if you have clear understanding, you will be able to answer any kind of question related to that concept. तो आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना, कुछ भी याद नहीं करना. You have to understand what's the logic behind each and every concept. Focus on that only, because costing is a very easy subject. If you say, like for a layman, अगर आप उसको बोलोगे कि ये पर्टिकुलर चीज़ का क्या कॉस्ट होगा, कोई भी अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आपको बता देगा. तो एक लेमन के हिसाब से यू हैव टू थिंक कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. तो सिमिलरली व्हेन यू आर सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस लाइक मटेरियल्स का, लेबर, ओवरहेड, एनी काइंड ऑफ तो आपको वैसे ही एक लेमन के हिसाब से सोचना है. And you have to have that approach only while solving your questions in your exam. Okay? कॉस्ट को कभी भी रीड मत करना. यू हैव टू प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंदी आते हैं एंड इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस प्रॉपरली यू वोंट बी आंसर इट इन योर एग्जाम. यू नीड टू नो हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर. प्रॉपर सम्स करो, कैसे क्वेश्चंस को ब्रेक करना है, हाउ टू ब्रेक द क्वेश्चंस, हाउ टू अप्रोच योर क्वेश्चन. फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, डोंट जस्ट रीड. ओके, सॉल्व जब भी करोगे आप क्वेश्चंस को, ट्राई टू ब्रेक दैट क्वेश्चन. जैसे आपको एक ही क्वेश्चन में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, तो आप ट्राई करो उसको ब्रेक करने का. ब्रेक द क्वेश्चंस एंड देन सॉल्व इट. एग्जाम्स में भी जैसे कोई भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या बजटिंग या ये सब का जब क्वेश्चंस आता है, तो अगर स्टैंडर्ड से है तो आपको उसी हिसाब से ब्रेक करना है. यू नीड टू ब्रेक द क्वेश्चन इन स्मॉल पार्ट एंड देन सॉल्व इट इंडिविजुअली फॉर द एंटायर क्वेश्चन. तो बेसिकली आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना आना चाहिए. ओके, एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कौन कौन से चैप्टर से किस किस कॉन्सेप्ट्स को वो लोग इंक्लूड करते हैं. जैसे ब्लॉक आप बना लो, जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड मेरे को एक साथ कंप्लीट करना है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, ABC मेरे को एक साथ करना है, बाकी जो टॉपिक्स है वो मेरे को एक साथ करना है. सिमिलरली CA फाइनल में भी आप यू डिवाइड योर चैप्टर्स ब्लॉक वाइज एंड देन स्टडी, so that you have clear understanding of all the permutation combination of the questions which you might get in your exam in single question. Okay, take a notebook, write concepts, then solve question. आप खुद का notes बनाओ, make your own notes. किसी का भी notes काम नहीं आएगा. When you write your notes, that will only help you to understand the concept and have good understanding of the entire chapter. कोई भी friend, don't take notes from any of your friends. Make your own notes and then solve it. I used to have a big motor register, proper वाला, जिसमें मैं concept लिखती थी and then I used to solve the question. I am not getting it. I think I gave it to someone, but I don't have it right now with me. But एक मोटर रजिस्टर लेके एक एक चैप्टर को प्रॉपरली सॉल्व करो, स्टिकी पैड्स लगाओ एंड एक प्रॉपर कॉस्टिंग के लिए एक प्रॉपर एक सीक्वेंस में start solving your questions. You will score very good marks. I'm sure about it. Then books के लिए देखो, don't study from 5, 10, 15 books. No, you don't need it. Consider ICI module
your RTP, your mock test paper, your sample papers. For theory also, if you study from this 4, you will be able to score good marks in your theory part as well. आपको 5-6 books नहीं करना है, आपको कुछ वैसे practice नहीं करना. If you have taken coaching from any teacher, उनका study material करो, but you have to do ICI module. It's a must. Practice manual, it's a must. ओके RTP इज़ अ मस्ट बिकॉज कुछ ना कुछ क्वेश्चन पक्का आएंगे एग्जाम में. सम क्वेश्चंस विल कम. आई हैव दैट एक्सपीरियंस CA फाइनल के टाइम पे. जो मैंने एक दिन पहले ऐसे ही आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू फ्यू क्वेश्चंस. जो क्वेश्चन मैंने देखा था वो एज इट इज़ पेपर में कॉपी पेस्ट इट केम इन माई एग्जाम. That give you an extra confidence and extra motivation to solve that paper. आप starting में बहुत energetic feel करते हो कि I know that, because costing के questions बहुत lengthy होते हैं, अलग होते हैं. It's not necessary कि you will get those question only जो आपने पहले पढ़ रखा है, right? तो इसीलिए ICI के मॉड्यूल में आपको variety of questions मिलेगा, उन सबको solve करना आप मत भूलिएगा. That's a must. थ्योरी के लिए भी आप इन चारों को पढ़ लो, ICI मॉड्यूल, RTP और आपका पास पेपर्स देख लो, सफिशिएंट है थ्योरी, उतना में आप कर लोगे, राइट. और कॉन्सेप्ट्स तो आप चैप्टर के पहले पढ़ोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट प्रॉपरली. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स at your home. 3 hours exam environment में you need to have a time bound exam, because examination में you'll get only 3 hours to solve that paper. घर पे आप टाइम लगा के कर लोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज एग्जाम में तो यू हैव दैट दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ओनली टू सॉल्व द क्वेश्चंस. तो इफ़ यू प्रैक्टिस इट एट होम ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली टाइम बाउंड करके, तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर इन योर ड्यूरिंग द एग्जाम. ओके, तो 3 hours एग्जाम का माहौल बना के गिव योर पेपर, एटलीस्ट 3 to 4 सैम्पल पेपर्स गिव इट इन योर एग्जाम, सो दैट यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अप्रोच. फाइन. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कॉस्टिंग में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए उसमें प्रैक्टिस भी चाहिए. यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड अ गुड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एज वेल. इसीलिए प्लीज़ आप पक्का से 2 to 3 पेपर्स तो यू हैव टू सॉल्व इट. कैटेगराइज योर चैप्टर, जैसे आई हैव सेड दिस ऑलरेडी टू यू. प्लान प्रॉपरली. कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को एक साथ आप मर्ज करके करो, राइट. ग्रुपिंग बना लो चैप्टर्स के, एंड उसी हिसाब से यू स्टार्ट योर प्रेपरेशन. थ्योरी के लिए आई सेड ऑलरेडी ICI मॉड्यूल, RTP पास पेपर्स. जिस ट्यूशन जिस कोचिंग में आप कर रहे हो उसमें अगर थ्योरी लिखा हुआ है यू कैन गो थ्रू दैट, बट ICI मॉड्यूल में जो थ्योरी है फ्रॉम दैट इफ़ यू स्टडी दैट सफिशिएंट. फाइन. एंड द लास्ट पॉइंट इज इफ नथिंग वर्क्स ट्राई लॉजिक. ओके, लाइक अ लेमन, थिंक लाइक अ लेमन, लाइक अ नॉर्मल पर्सन, कि वो कॉस्टिंग को कैसे करेगा, कोई भी मटेरियल का कॉस्ट कैसे निकालेगा, एनी प्रोडक्ट का कॉस्ट हाउ विल ही कैलकुलेट, लेबर कॉस्टिंग, ओवरहेड कॉस्टिंग. अगर वो कुछ नहीं पता, उसको पता है कि इतना 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 खर्चा लगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा. उसी हिसाब से आप सोचो एंड डू इट. डोंट लीव इट अनअटेम्प्टेड. Attempt 100% paper. Time manage करना is very important. To have an idea on how to complete a 100% paper, you can go watch my video on how to complete your 100% paper, 100% attempt. It will really help you to manage your time properly in your exam. And that's all on how to study your cost paper. I really hope these are helpful. My best wishes are always there with you guys. So all the students out there, that's all on how to study costing as a subject in your professional courses. I really hope you will practice more and you will focus more on the conceptual knowledge of the subject. That will help you to score better marks in your exams. I really hope this video is useful to all the students out there who are going to give their exams soon. And if you like this video, don't forget to click on the subscribe button and share it with your friends so that they can also study with proper knowledge of this subject. Thank you so much.